ये अलग अलग व्यू आपको मार्केट्स पे मैक्रो और माइक्रो दोनों ही व्यूज मिल रहे हैं और मार्केट के जो ट्रेंडिंग शेयर्स हैं वो भी हम आपके सामने रखते ही हैं। इसी कड़ी में अब राजेश पलवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सुबह हम जब चर्चा कर रहे थे तो एक चीज बिल्कुल साफ थी कि एक तो रियल एस्टेट कंपनियां और साथ ही रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां जो हाउसिंग फाइनेंस में है वो अच्छा चल सकती है। दिन में पहले कैनफिन होम्स चला, अब दोपहर होते होते LIC हाउसिंग फाइनेंस भी डे हाई पे है 3% की मजबूती के साथ। सर ये और चलेगा क्या? अभी 400 450 हो जाएगा, मतलब 425 हो जाएगा बजट से पहले? तो डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए काफी समय से LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखे तो एक प्रेशर बना हुआ था और जिस तरीके से स्टॉक ने एक रेंज में कंसोलिडेशन किया, अगर हम नियर टर्म सेटअप देखें तो 8 से 10 दिन का एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख। हालांकि स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था वीकली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक में हमें चार्ट सेटअप के हिसाब से देखने को मिला। तो हमें लगता है ये मोमेंटम जो एक रिवर्सल बना है, ये मोमेंटम और भी अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बिल्कुल हमें लगता है 425 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक भी ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पर भी पोजीशन बना रहे, कोई डिप मिलती तो ऐड किया जा सकता है। 370 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड के टारगेट 425 तक हमें लगता है बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं LIC हाउसिंग में। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन्हीं सब कुछ और मोमेंटम वाले शेयर्स पे चर्चा करेंगे। आज सुबह ET Now पे हमारे साथ अतुल सूरी थे जिनसे हमने बातचीत की थी, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालवे ने उनसे बातचीत की। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या बात कही है। Fact is that this beautiful rally that has happened is in the backdrop of global markets which have been volatile. You know, one is your whole EM basket where we are a subset of, has done nothing. FI flows which had briefly turned positive have turned negative again. Coupled with that US markets are seeing volatile, especially in the tech space. So considering all those things, I think India is doing very well, and I think we are pushing towards new lifetime highs. A brief underperformance that we had in December or so is getting caught up. So I think it's all in all a very impressive market. But I still am of the camp that we are not going to have a runaway market. I think globally markets are going to pause or be range bound. Range bound does not mean that they will do nothing. A lot happens within ranges, and ranges also are large percentage moves. But what you are seeing is a massive churn that is happening globally away from growth to value. And this is very, very evident in the way the US markets are panning out. If you look at the movement of the Dow versus the Nasdaq, two very simplistic ways of looking at growth and value is that you see very, very divergent performances. So even in the Indian context, I think what you've seen in the last 15 days, that growth has taken a bit of a pause, and the value rally seems to be pretty strong. So in a longer time frame, I think that we are not going to be a runaway market. In this, you're going to see churns, you're going to see growth someday, value someday, and that's the kind of play that is happening out. But all in all, positive on the market, positive on the year going ahead, positive on the opportunities it's going to throw us. Just to put it in sectorial or thematically, we are extremely overweight specialty chemicals. We have been towards the end of 21, it was a bit of tough kind of period for specialty chemicals. We saw them correct. But you'll see that in the first 15 days of this month, many of them have actually pushed to lifetime highs. And in fact, they've gone substantially higher. So there is a 25 to 30% of the portfolio which has pushed towards lifetime highs and higher. Yes, on the counter side, not everything can be a peach. You do have some spaces, especially the more defensive areas, some of the FMCG plays, some of the consumer discretionary plays, some of the pharma plays, which are kind of struggling. But as I said, that this year is not going to be a one-horse theme. It's not going to be a one-way theme. I think you're going to have, phases when we all will going to get bullish about something, and it's kind of going to disappoint. And when we get really bearish about something, we are going to, be surprised on the upside. I mean, it happened. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश। राजेश पालविया और श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ हैं। मोमेंटम की बात कर रहे हैं अगर, तो एक स्पेस जो क्लियरली डेज लो से रिबाउंड करके आया है वो है मेटल स्पेस।
टाटा स्टील स्टैंड आउट कर रहा है, जेएसपीएल और हिंडाल्को भी फॉलो कर रहे हैं। राजेश, आपके पास आएंगे। टाटा स्टील में एक पहले ही हमने बहुत ही सॉलिड दिन देखा था, 5-6% ऊपर लास्ट वीक, और आज ये फिर 1240 की तरफ आ गया है। किस तरह का वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, क्या चार्ट्स पे लेवल वॉच आउट करेंगे? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो देखिए बिल्कुल मेटल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली और जिस तरीके से सारे ही मेटल स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, हमें लगता है कि मेटल सेक्टर यहां से एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकता है। टाटा स्टील के इंडिविजुअल चार्ट की बात करें तो जिस तरीके से टाटा स्टील के सेटअप बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखे। काफी बड़े कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद अब ये पूरा पैक अब एक रिकवरी बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से टाटा स्टील के सेटअप बने, अगर हम वीकली सेटअप की बात करें तो स्टॉक में जो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था वो कहीं ना कहीं रिवर्स होते हुए दिख रहा है। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक पॉजिटिविटी बना के देखने को मिल रही, और ये 3rd कंसेक्यूटिव वीक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके के सेटअप बने हैं टाटा स्टील के, हमें लगता है स्टॉक में जो अपसाइड का मोमेंटम है वो 1300-1320 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। करंट लेवल से 1200 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है, तो 1190 के आसपास का हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और बाय करने की सलाह देंगे। टाटा स्टील में काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है पिछले 3 वीक का अगर हम सेटअप देखें तो, और हमें लगता है 1300 से 1320 तक की अपसाइड के टारगेट टाटा स्टील में बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। श्रीकांत, रिलायंस पे क्या व्यू बन रहा है? आज भी छोटा सा अप मूव दिखा रहा है, लेकिन पूरे बाजार को ये सपोर्ट करता रहा। फर्स्ट हाफ सेशन में जब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस काफी ज्यादा वे डाउन कर रहे थे पूरे बाजार को, तो सेलेक्ट आईटी और मेटल काउंटर्स के साथ रिलायंस भी काफी अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था, 1% ऊपर। इसमें कुछ और आपको अप मूव दिख रहा है क्या? या गुड आफ्टरनून अजय जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमें बिल्कुल एक फोकस रखना है, क्योंकि ये भी एक इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक है और मार्केट जैसे कि 18,600 के काफी नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो हेवीवेट स्टॉक है वहां पे भी हमें तेजी बिल्कुल देखने मिलेगी, और लगातार 3 या 4 दिन से अगर आप देखें तो इसमें एक अप ट्रेंड बना था। शुक्रवार के दिन हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन इवेंचुअली आज उसे वापस वो रिवर्स करते हुए नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि काफी नियर बाय स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 2525 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करें, 2555, 2560 के करीब इसे खरीद लेना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2620-30 के लेवल्स दिखा सकता है, और जैसे इस बार का इसका परफॉर्मेंस है, काफी स्टेडी परफॉर्मेंस है, नहीं तो हमेशा ये काफी वोलेटाइल रहता है। पिछली जो रैली थी अजय जी, अगर आप देखेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, वो भी काफी स्टेबल रैली थी, स्टेडी रैली थी। कोई बड़े प्राइस वेरिएशंस नहीं थे, लेकिन स्टेडीली स्टॉक 2300 वाला तकरीबन 2700 के करीब गया था। हमें लगता है कि इस बार भी इसमें वो स्टेडी परफॉर्मेंस है, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। राइट, श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। हम सेक्टर्स क्लियरली आइडेंटिफाई ट्रेंड कर पा रहे हैं कि बजट से पहले जिन सेक्टर्स में एक मूव होता है वो आपको अच्छे खासे अप ट्रेंड में दिख रहे हैं। डिफेंस स्पेस से भी हम काउंटर्स वाला की देख रहे हैं, एचएएल जैसे काउंटर, बीएल जैसे काउंटर, जिनमें मूव देखने को मिला है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंटली ट्रेंड नहीं दिखा है अब तक। जिस तरह की आपको क्लियरली ईवी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एनर्जी पैक का ट्रेंड दिख रहा है, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, ये आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है। डिफेंस स्पेस पर आपका क्या व्यू रहेगा बिफोर बजट? किस तरह के मूव देख सकते हैं? बिल्कुल, तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमें लगता है कि डिफेंस साइड पे इस बार वैसे भी फोकस कम रह सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया उलझी हुई है ये कोविड के इलाज के ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए। तो हमें लगता है कि फोकस कम रहेगा, लेकिन जैसे कि डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए हो रहे हैं, जैसे एफडीआई आ रहे हैं इंडिया में, एक बात तय है कि हमारे लिए इन पूरे सेक्टर के ऊपर या हर एक स्टॉक के ऊपर क्लोज वॉच रखना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी भी ये सब काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के साथ अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकली भी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पिछले 2 दिन या 3 दिन में कम से कम 100 रुपए चल चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी काफी गुंजाइश है, और जैसे इसमें फ्यूचर फ्लोज बनते जा रहे हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी भी लिया जा सकता है। 1390-1400 के करीब मिल रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1550 के लेवल जो इसके प्रीवियस हाइज थे उसके नजदीक जाते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ हमें लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि बजट के करीब हमेशा हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत अर्थमूवर, इन 2 स्टॉक्स में हमने हमेशा अच्छी तेजी देखी है।
तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी लॉन्ग किया जा सकता है, जो 217-18 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 240 से लेकर 245 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। राजेश, गुड आफ्टरनून। हमने कई स्पेसेस देखे, जैसे अब आप एक सॉफ्ट कमोडिटीज का स्पेस देखें, या कॉफी पैक से आपको टाटा कंज्यूमर हो, आपको उसमें तेजी दिखेगी, आपको ऑलरेडी चल रही है। इनफैक्ट आज बॉम्बे बुमराह बीबीटी इसमें मूव देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है कि काउंटर्स अभी भी बजिंग रहेंगे? लेवल्स किस तरह के देखते हैं आप चार्ट्स पे? देखिए, काफी बड़ा एक करेक्शन हमने सारे ये स्टॉक्स में इस सेगमेंट में देखने को मिला, और अब एक करेक्शन के बाद ओवरऑल अगर ब्रॉड बेस मार्केट में जिस तरीके से तेजी बनी, तो जरूर इस सेगमेंट में भी एक रिकवरी का ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर हम इस सेगमेंट में बात करें तो टाटा कंज्यूमर में जिस तरीके से पिछले 2-3 वीक से एक रिकवरी का ट्रेंड बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से 800-810 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो टाटा कंज्यूमर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये रिकवरी में। हमें लगता है कि अब यहाँ पे 745 ये स्टॉप लॉस रख के इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 810 तक के अपसाइड के लिए। और बाकी दूसरे स्टॉक की बात करें इसी सेगमेंट में, तो हमें लगता है कि बाकी शुगर स्पेस पे भी फोकस किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि वो सेगमेंट भी काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। श्रीकांत, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है, वो है जरा टाटा मोटर्स। आप जरा ये चेक करेंगे क्या ये नए हाई की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अपने ना पुराने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, और अगर इस बार अगर ये पार हुआ तो फिर बहुत अच्छा फिर से चल सकता है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ तेजी अगर टाटा मोटर्स की छोड़ दी है, तो क्या सेकेंड राउंड ऑफ तेजी में टाटा मोटर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या इन स्तरों पर आ जाए, प्लस कर सकते हैं क्या पोजीशन? बिल्कुल इसे लिया जा सकता है, और उसकी वजह यही है कि इसमें जो एक बड़ी न्यूज आई थी कि जो सेमीकंडक्टर की जो इसकी प्रॉब्लम है वो आने वाले कुछ महीनों में सॉल्व होती दिखेगी, और इसके बाद हमने एक बड़ी इसमें तेजी देखी थी जो तकरीबन इस स्टॉक को 530 के करीब लेके गया था। और उसके बाद चूंकि काफी बड़ी तेजी आई थी, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो काफी बड़े इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी में आए थे, तो ये फंडामेंटल न्यूज के बाद जो एक इसमें प्राइस रैली बनी थी 300 से लेकर 500 सवा 500 तक की, वहां पे एक टाइम करेक्शन आना काफी जरूरी था, और हमने वो टाइम करेक्शन पिछले 3 महीने में देख लिया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अब हमें लगता है कि टाइम करेक्शन हो चुका है और वापस ये स्टॉक अपने एक ट्रेंड में एंटर हो सकता है। तो करंट लेवल से भी टाटा मोटर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है 530 के नीचे, 530 के ऊपर एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन भी बनेगा, और टारगेट्स नजर आ रहे हैं 560 से लेकर 565 के। तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 524-25 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 510 रुपए का। ठीक है, स्टॉप लॉस रखना है 510 का, 565 तक का टारगेट है। अच्छे से आप ये सब चीजें नोट कीजिएगा। 525, 526 के आसपास चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है। जाएंगे तो यहाँ से 15 रुपए जा सकते हैं, और आने के लिए यहाँ से कम 30 से 35 रुपए हैं जो आपको मिल सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा उससे भी ज्यादा आप समझिए, तो रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है यहाँ पे ट्रेड के लिए। एक कैश का शेयर है जिसको मैं कल भी डिस्कस कर रहा था, आज 6% ऊपर है। इनफैक्ट 2 कैश के शेयर्स हैं। एक पहला है सुबेक्स, जिसके आज नंबर्स आने हैं। राजेश सर, एक बार जरा दोनों शेयर्स देखो, मैं आपको बताता हूं। एक तो है सुबेक्स, SUBEX, जो भी 53-54 पे चल रहा है, और दूसरा है एक उमंग डेयरी, आज ये 5.5-6% ऊपर है। इन दोनों के अंदर क्या आज भी खरीदारी की जा सकती है? सुबेक्स के आज नंबर है, अभी तक आए नहीं। उमंग डेयरी की आने वाले दिनों में आएंगे। ये 100 रुपए हो जाएगा बजट से पहले? डिम्पी जी, देखिए सुबेक्स का सेटअप देखें तो पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक में एक रैली के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन करेक्शन का दौर इसमें चलते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप बने हुए, हमें लगता है 51 के आसपास स्टॉक ने काफी अच्छा एक टाइम बिताया, और वहां पे एक सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक का नियर टर्म चार्ट पे। हायर साइड की बात करें तो 56 रुपए इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है, और जैसे ही ये 56 रुपीज के लेवल को सरपास करेगा तो हमें लगता है ये स्टॉक में सुबेक्स में जो मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, वो फिर इसको 64-66 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो रिजल्ट के बाद 56 का लेवल देखना इंपॉर्टेंट होगा। वो लेवल क्रॉस होते से हमें लगता है स्टॉक में 66 रुपीज तक के अपसाइड बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है, 51 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे।
उमंग डेयरी की बात करें तो उमंग डेयरी में जिस तरीके से पिछले 4-5 सेशन से एक अपसाइड का ट्रेड बनते हुए दिखा है स्टॉक में, अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो 10 से 12 वीक का एक रेंज ब्रेकआउट होते हुए चार्ट पे विजिबल है। इसके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस यहाँ पे चार्ट पे विजिबल है वो है करीब 91 रुपीस के आसपास। अगर हमें लगता है ये 91 का लेवल सरपास करेगा तो स्टॉक में 110 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हालांकि अभी यहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉप लॉस जो रखना होगा लॉन्ग साइड के ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए वो होना चाहिए करीब 82 रुपीस के आसपास। पहले टारगेट होंगे 91 के, उसके बाद हमें लगता है 110 तक की भी अपसाइड आ सकती है। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट्स का ट्रिगर सुबेक्स हम देख रहे हैं, काउंटर में मूवमेंट है, उमंग डेयरी दूसरा काउंटर, दोनों के लेवल्स आप जरूर ध्यान रखें। अब एक बार बात कर लेते हैं ब्रेंट क्रूड की। क्रूड में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, बुल रन जारी है। इनफैक्ट अगर आप लेवल्स की बात करें तो लगभग 23% का अब तक का मूव देखने को मिला पिछले एक महीने में, और एक्सपर्ट्स को लग रहा है आगे तेजी अब भी जारी रहेगी। डिटेल्स एक बार सुमीत ने कंपाइल की हैं, क्या रीजंस हैं, क्या ट्रिगर्स हैं और आगे चाल कैसी रह सकती है क्रूड की, आइए समझ लेते हैं सुमीत से। ईयर टू डेट अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड करीब 11% से ऊपर बढ़ चुका है, और काफी फॉरेन ब्रोकरेजेस जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, यूबीएस और बोफा, इनका मानना है कि क्रूड प्राइसेस करीब $85 to $120 पर बैरल के लेवल पे सकता है। तो आइए देखते हैं ये हाई क्रूड प्राइसेस की वजह से कौन सी कंपनीज पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। पहले अगर हम ऑयल एंड गैस कंपनीज पे नजर मारे तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया तो डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे क्योंकि वो क्रूड प्रोड्यूस करते हैं, और हायर क्रूड प्राइसेस का मतलब होता है हायर रियलाइजेशन और हायर प्रॉफिट। बट हायर क्रूड प्राइसेस की वजह से एक थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट भी आ जाता है इन दोनों कंपनीज पे, क्योंकि सब्सिडी बर्डन का रिस्क आ जाता है इन दोनों कंपनीज पे। उसके अलावा गेल इंडिया भी बेनिफिट करता है क्योंकि कंपनी के कुछ गैस कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनका जो सेलिंग प्राइस है वो क्रूड लिंक्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स के सेलिंग प्राइस भी ऊपर जाते हैं, जिसके वजह से कंपनी बेनिफिट करता है। उसके अलावा कंपनी एलपीजी और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी बनाता है जिसके जो प्राइसेस है वो भी क्रूड लिंक्ड है। मतलब अगर वो क्रूड ऊपर जाए तो एलपीजी और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं, जिससे गेल इंडिया को बेनिफिट होता है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी अगर हम देखें तो हाई क्रूड प्राइसेस की वजह से उन्हें इन्वेंट्री गेन्स होता है जो बेनिफिशियल है। बट अगर हाई क्रूड प्राइसेस के साथ अगर कंपनी ने रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल है उनके प्राइसेस अगर नहीं बढ़ाए तो उनके मार्केटिंग मार्जिन पे इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। आखिर में अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में अगर हम देखें तो जो कंपनीज है आईजीएल, महानगर गैस और गुजरात गैस, इनको भी बेनिफिट होता है क्योंकि इनका मेन सेलिंग प्रोडक्ट होता है गैस, और जिसका कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स होता है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। तो अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो गैस की सेल्स ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, इनको बेनिफिट होता है। राइट सुमित, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज अच्छा खासा मूव आया है। श्रीकांत के पास चलते हैं कुछ बात करने के लिए। लार्ज कैप में अगर देखें तो डीएलएफ लास्ट 15 मिनट में सडनली एक अपमूव आया, उसमें थोड़े वॉल्यूम भी ठीक ठाक हैं। और सुबह की न्यूज अजमेरा रियल्टी में कि 1500 करोड़ का वो रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं वडाला प्रोजेक्ट से, जबकि खुद पूरा मार्केट कैप भी 1700-1800 करोड़ है। इन दोनों के चार्ट्स पे आपको क्या नजर आता है? डीएलएफ और अजमेरा, एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप रियल एस्टेट काउंटर, श्रीकांत, चार्ट्स पे। बिल्कुल, तो देखिए वैसे रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो हर एक स्टॉक में हमने अच्छी तेजी देखी है, और जहां पे भी काफी बड़े नेम है या तो बिग कॉर्पोरेट्स है जिनके लिए पैसा रेस करना उतनी दिक्कत की बात नहीं, और काफी सारे पैसे वैसे मार्केट में आ चुके हैं, तो लिक्विडिटी बिल्कुल है और इसी का फायदा हो रहा है इन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, प्लस अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। तो करंट लेवल से अगर डीएलएफ की बात करें तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक वैसे काफी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद अगर इसमें अगर एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन अगर बनता है तो ये भी स्टॉक कम से कम 500 के लेवल्स दिखा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। बट वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो कल के दिन में एक रिवर्सल पैटर्न था, उसका आज कंटिन्यूएशन है, तो करंट लेवल से डीएलएफ को भी लॉन्ग किया जा सकता है। 422-423 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 440 के लेवल्स वापस से दिखा सकता है, और अगर करंट लेवल से लॉन्ग करता हो तो हमें 410 का स्टॉप लॉस हमें रखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। और जैसे आपने बात की अजमेरा रियल्टी की, तो यहाँ पे तो अगर आप देखें तो ये ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक आ चुका है और काफी अच्छा एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है। यहाँ से अगर जो नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन आ रहे हैं 470 के,
और 470 और 490। तो करंट लेवल से यहाँ पे भी हमें एक लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोजिशनल व्यू रखें, क्योंकि ये स्टॉक 300 रुपए के करीब था और 300 रुपए से लगातार बढ़ते बढ़ते 5 या 6 दिन में अजय जी ये 420 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से पोजिशनल व्यू ले, लेकिन बिल्कुल खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, एक बार अब फिर से अगर मार्केट्स पर नजर आए तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी पॉइंट्स के हाथ से कुछ 20-30 पॉइंट्स की और गिरावट बढ़ी। अब लगभग 200 पॉइंट्स 186 प्रिसाइज पॉइंट्स है जहां पर आपको एक फॉल दिख रहा है। तो एक बैंकिंग स्टॉक्स में जो एक प्रेशर है वो थोड़ा सा और बड़ा ही है। राजेश, क्या लग रहा है आपको एक बड़ा ट्रिगर रहा? क्योंकि हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में भी बैंकिंग स्टॉक्स बहुत स्लाइड हुए डिस्पाइट द गुड नंबर्स। आज भी किसी तरह का ट्रिगर इसको लेकर नहीं आएगा। यूएस मार्केट्स आज बंद है, लेकिन वहां बड़े फाइनेंशियल्स के इस पूरे हफ्ते में रिजल्ट्स और भी हैं स्टॉक्स पे। बैंकिंग इंडेक्स हमारे यहाँ इंडियन मार्केट्स में ये बैंकिंग इंडेक्स या क्या बड़ा ट्रिगर होगा, या कैसे अब आप देख रहे हैं एक्सपायरी से पहले इन दोनों इस इंडेक्स की चाल 3 दिन अब अगले कैसे रह सकते हैं बैंकिंग इंडेक्स के लिए? तो प्रियंका जी देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें स्पेशली, तो बैंक निफ्टी में 38,500 बैंक निफ्टी स्पॉट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि स्टिल बैंक निफ्टी उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाई है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा हमें नहीं लगता कि अभी यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो थोड़े समय के लिए हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन का ट्रेड यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक निफ्टी में बनते हुए दिख सकता है। रेंज जो हमें लगता है बैंक निफ्टी में आ सकती है वो करीब 37,600 से लेकर 38,500, ये 1,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट दायरा है। हमें लगता है कि ये रेंज में ही बैंक निफ्टी का ट्रेड रहेगा, लेकिन थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है हायर साइड पे बैंक निफ्टी, जो भी अटेम्प्ट किए पिछली 2-3 बार बैंक निफ्टी ने 38,500 के अटेम्प्ट किए, वहां पे कहीं ना कहीं सप्लाई जरूर बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 38,500 के लेवल के बाद ही बैंक निफ्टी में एक नया फ्रेश शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड और एक फ्रेश न्यू बाइंग का भी ट्रेड बनते हुए दिखेगा। टाइम बिंग के लिए हमें लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, डिप आते हुए दिख सकती है। बट इसी सेगमेंट में अगर हम देखें बैंकिंग स्टॉक्स में, हमें लगता है कि कैनरा बैंक, एसबीआई, ये 2 बैंक पीएसयू सेगमेंट में काफी अट्रैक्टिव लग रही है। जिस तरीके से इनके सेटअप बने हुए, हमें लगता है अगर कोई माइनर करेक्शन मिलता है तो कैनरा बैंक और एसबीआई, ये दोनों बैंकों पे फोकस किया जा सकता है। इनमें बाई की पोजीशन डिप्स में बनाई जा सकती है। ऑलराइट, ठीक है। कैनरा बैंक और एसबीआई आपको पसंद आता है यहाँ पर इस डिप में जहां खरीदारी कर सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होता है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। निफ्टी ने तो आज बहुत अच्छे से 18,000 ना केवल 200 को बचाया बल्कि 300 के ऊपर आके भी ट्रेड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और कुछ एक और शेयर्स। लेकिन आज बैंक निफ्टी आज दिन भर की स्ट्रगल उसकी दिख रही है अलग अलग तरीके से, वो आज आधे % नीचे है। लेकिन अजय एक इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा और इस पर आपका टेक भी चाहूंगा। 2000 वैसे तो ये बोला जाता है कि गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना यानी कि क्रूड के दाम बढ़ाना अच्छा नहीं है, लेकिन ये महज इत्तेफाक ही आप सोचिए कि 2018 में निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है वो था 12,000 और आज 2022 के शुरुआत में, या मैं बोलूंगा 21 के एंड में, आप फिर से 12,000 आ गए हैं और क्रूड भी 3 साल की वापस ऊंचाई पर आ गया। यानी कि जहां पे पहले क्रूड था, जहां से हम टूटे थे, वहां पे फिर से कोरिलेशन दिख रहा है कि दोनों अपने 3-3 साल के हाई पर है। क्रूड भी 3 साल के हाई पर है और ऑटो भी 3 साल के हाई पर है। ये फर्क क्यों है? ये वापस एक साथ आ गए हैं, तो क्या ईवी इनमें फर्क कर सकता है? नई टेक्नोलॉजी इसमें फर्क कर सकती है क्या? क्योंकि दोनों उसी क्रिटिकल जगह पर हैं, क्रूड भी वही है और ऑटो इंडेक्स भी वही है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है रिम्पी, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपकी अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो 3 साल से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपकी मतलब आपकी खुद की भी, आई एम श्योर, लेकिन एक आम नागरिक की भी। जिस हिसाब से हम रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं ना कि अफोर्डेबिलिटी, आदमी की आमदनी और खरीद सकने की चाह दोनों जो है ना 10 ईयर हाई पे, इसलिए आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। अफोर्डेबिलिटी में एक फैक्टर इंटरेस्ट रेट का होता है जो कि काफी लो है, दूसरा फैक्टर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है जो कि क्रूड है, पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए, लेकिन लोगों की, सिटीजन की आमदनी बढ़ गई। अगर आप देखें कमेंट्री जो आ रही है, टाटा मोटर्स के पास गाड़ियां सप्लाई करने के लिए नहीं है 1 साल तक, जितने भी अपने टॉप एंड मॉडल हैं उनके, वो निक्सॉन और इन सब टिगोर से काम चला रहे हैं अपना।
अगर आप मारुति की बात करें, वो भी प्रीमियम वाले सेगमेंट की गाड़ियों में कुछ महीनों की 3-3, 4-4 महीनों की वेटिंग आ गई है। और यहाँ तक कि जो नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, आपकी M&M XUV 700, उसमें 10 महीने की वेटिंग है। तो डिमांड जो है वो वापस आ रही है। ऑफ कोर्स ईवी एक इशू है और स्टॉक मार्केट ईवी बहुत पसंद करता है। 10 साल से स्टॉक्स कहीं गए नहीं है, ओनरशिप एकदम कम हो चुकी है। ऑटो इंडस्ट्री को देखिए, डिसरप्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी कंपनियां, ये सब बातचीत हो रही थी। तो जो स्टॉक मार्केट है वो कई सारे फैक्टर्स को साथ में लेके चलता है, सिर्फ अलोन पेट्रोल का प्राइस ही नहीं। वो तो काफी, वो पहले हम लोग आज से 8-10 साल पहले उस तरह का एनालिसिस करते थे, पर चीजें बदल गई हैं। अब देखिए आप किस तरह से टाटा मोटर्स का स्टॉक चल रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ, और ईवी तो अभी आई भी नहीं है। उनकी पहली गाड़ी को आने में कम से कम 2 साल है यहाँ से, जो प्रीमियम ईवी की बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स JLR वाली। बट निक्सॉन ने उनका वो बदल दिए। तो ये सब चीजें हैं डिम्पी जी। बट आपका फेवरेट कौन सी ईवी गाड़ी है ये बता दीजिए। आप ईवी को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आजकल। सर मैं तो ऑफ कोर्स टाटा लीडरशिप है तो टाटा की ही गाड़ी पे ही मेरा थोड़ा ध्यान है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सफारी भी ईवी में आ जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी जो मेरे को पसंद है वो सफारी है, बट वो ईवी में नहीं है अभी। आ जाएगी, आ जाएगी। तब तक आप लैंड रोवर और जगुआर की गाड़ियों को एनालाइज कर लीजिए, क्या पता वहीं आपका मन बन जाए। आगे बढ़ते हैं और फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जबरदस्त रिलेटिंग मूव हमें देखने को मिले। पूजा हमारे साथ जुड़ रही है एक एनालिसिस के साथ कि इस समय फर्टिलाइजर मैथ किस तरह की लग रही है। बजट आते ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक्टिव होने लगते हैं। तो पूजा बताइए क्या रीजन है, बाजार क्यों इतना एक्टिव हो गया है फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर? जी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बजट में एक बड़े ऐलान की संभावना है और इस बार फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो करीब 900 करोड़ डॉलर का ऐलान संभव हो सकता है। 900 करोड़ डॉलर मतलब करीब 1.4 लाख करोड़ की सब्सिडी अनाउंस हो सकती है। ये काफी बड़ा अमाउंट है, काफी बड़ा आंकड़ा है ये, क्योंकि अगर हम इसको पिछले कुछ सालों से करें तो 2018 में 18-19 के बजट में करीब 17,000 करोड़ के सब्सिडी का अनाउंसमेंट हुआ था। फिर 2019-20 में करीब 80,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ था। 2020-21 का जो बजट आया था उसमें 71,000 करोड़ करीब बजट के ये फर्टिलाइजर सब्सिडी का अनाउंस हुआ था। लेकिन इस बार ये जो आंकड़ा है ये काफी बड़ा नजर आ रहा है। ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाई रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत क्यों इतना पुश कर रहा है इस बार की सब्सिडी को। उसके सबसे पीछे वजह यह है कि यूरिया और DAP यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट, इसका भारत एक बड़ा खरीदार है और इसका जो उपयोग भी होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफी ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी अहम भी माना जाता है इंडियन की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि करीब 15% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एग्रीकल्चर की तरफ से आता है और 60% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से होती है। तो इस वजह से इस सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान है और जिस तरह से यूरिया और DAP के प्राइस में हम लगातार एक बढ़त देख रहे हैं, सरकार काफी ज्यादा कोशिश कर रही है इनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि किसानों को, कंपनियों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा नुकसान ना हो। इस वजह से ही सब्सिडी लाने की कोशिश कर रही है और सब्सिडी के जरिए ही प्राइस को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। इसका आकलन आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर यूरिया की प्राइस आप देखेंगे इंडिया में तो भारत जो कुल खपत है यूरिया की उसका करीब 30% तो इंपोर्ट ही करता है। और अगर ग्लोबली प्राइस देखेंगे इस वक्त तो यूरिया की जो प्राइस है वो 990 रुपए प्रति टन है, जबकि $990 प्रति टन है, जबकि भारत में उसको $71 प्रति टन के आसपास कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा कंट्रोल सरकार लाना चाहती है तो उनके पास सब्सिडी का ही ऑप्शन बचता है, जिसके जरिए वो ये प्राइस कंट्रोल कर सकती है। DAP में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। सरकार उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती प्राइस को, तो इनडायरेक्टली सब्सिडी के जरिए इस प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर इसका कुल खपत की बात करें तो कुल खपत का 60% भारत इंपोर्ट करता है और उसके पास चीन से भी करीब 40% का इंपोर्ट आता है, जिसमें कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो रही है तो वहां से भी डिले हो रहा है। तो इससे भी प्राइस का काफी ज्यादा कंसर्न भारत को झेलना पड़ता है। तो ये जो सब्सिडी अनाउंसमेंट हुई है ये काफी बड़ा फैसला होगा सरकार की तरफ से और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका अंदाजा था और फर्टिलाइजर शेयरों में काफी
ज्यादा तेजी काफी समय से एक तेजी हम देख रहे हैं। अगर पिछले 6 महीने का हम रिटर्न देखेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर में देखिए 55% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। जेएनएफसी में करीब 40% का रिटर्न ये स्टॉक कंपनी दे चुकी है। इसके बाद दीपक फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, फैक्ट, राष्ट्रीय केमिकल, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इस ऐलान जो ऐलान होने वाला है उसकी संभावना के बाद से ये तेजी हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बनी हुई है। Right. Thanks very much for that analysis, पूजा। श्रीकांत, अभी अल्ट्राटेक का नंबर आया, काफी अच्छा नंबर था, डिम्पी ने एनालाइज भी किया था। स्टॉक टॉप गेनर हो गया इंडेक्स में। लग रहा है बाजार को बहुत ही ज्यादा पसंद आए ये नंबर्स। चार्ट्स पे क्या लग रहा है आपको अल्ट्राटेक के? इनफैक्ट अजय जी, इसमें अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के पहले इसमें काफी सारा कंफ्यूजन था और स्टॉक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा था। तो कभी भी अगर कोई भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है तो एक बात क्लियर होती है कि जो इसके प्लेयर्स है या तो जो इसमें काफी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं ट्रेड करने के लिए, वो कंफ्यूज रहेंगे। और इवेंचुअली जब रिजल्ट आया उसके बाद अगर नंबर्स अगर अच्छे लगे तो उसमें एक बाइंग जनरेट हुआ है। तो करंट लेवल से बिल्कुल आज के ब्रेकआउट के बाद तो इसमें जो फॉर्मेशन का जो एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है वो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज को बिल्कुल छू सकता है जो 8,200 के करीब के थे। करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले काफी बड़े वॉल्यूम के साथ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी मैं बोल सकता हूं कि शायद अक्टूबर के बाद अभी इसमें इतने बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और प्रीवियस हाइज 8,200 के करीब के है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करके चले 7,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखे काफी नजदीक का 7,800 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट जैसे मैंने बताया 8,100 8,200। ऑलराइट श्रीकांत, तो ये सिर्फ सीमेंट पैक में अल्ट्राटेक नहीं, आप देखेंगे पूरा सीमेंट पैक ही एक रनअप दिखा चुका है। ग्रासम को आप देखें पिछले कुछ मिनटों में कितनी अच्छी तेजी, लगभग अब 3% तेज है काउंटर। इनफैक्ट आज अगर आप पूरा स्पेस देखें, अगर एक इंप्रेशन अगर आपको F&O मार्केट दे, डेरिवेटिव स्पेस देखे तो उसमें आपको मैक्सिमम काउंटर्स या तो ऑटो एंसिलरी, OEM, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये दिखता है। और इनफैक्ट अब ऑयल मार्केटिंग के काउंटर्स भी जो तेज है उसमें भी आपको ट्रिगर बार बार ध्यान यही जाता है। श्रीकांत, एक तो क्योंकि GRMs बेटर होंगे, ये एक बड़ा ट्रिगर है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है, HPCL, BPCL, इस पे आपकी एक राय जानना चाहेंगे। दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ट्रिगर ये भी है क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस यही इन ऑयल मार्केटिंग फर्म्स के होंगे जिसके वजह से एक EV का भी ट्रिगर। आप कैसे देख रहे हैं इन स्टॉक्स को? बिल्कुल, तो देखिए इनमें एक हमने हमेशा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी है और बिकॉज की इसमें जो कंपनीज है यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग होता है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट जो आते हैं वो काफी सिलेक्टिव रहते हैं, तो काफी लंबी अवधि के नजरिया से आते हैं। हमें लगता है कि अगर यहाँ से इन सब स्टॉक्स में अगर फोकस करना है तो BPCL भारत पेट्रो पे फोकस करें। उसके दो ट्रिगर है, एक तो आने वाले दिनों में अगर क्रूड प्राइसेस अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो इनको इन्वेंट्री का बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ जो प्राइस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो बिल्कुल चल रही है, दाम तो बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो एक डाइवेस्टमेंट जो आने वाले शायद बजट में इसके ऊपर अगर कोई और डिस्कशन अगर आता है तो ये स्टॉक के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड था। भारत पेट्रोलियम तकरीबन 460-470 के करीब ट्रेड कर रहा था, उसके बाद लगातार गिरते गिरते ये 380-390 के करीब आया है और अभी इसमें एक वापस रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं 400-402 के करीब, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 390 रुपए का, टारगेट रखेंगे हम 420 रुपए के। और इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में ध्यान देना है तो मुझे लगता है कि ONGC पे फोकस करें क्योंकि ये स्टॉक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अपने एक सबसे बड़े मजबूत फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन मैंने पिछले कम से कम मुझे लगता है कि 5 या 6 साल में नहीं देखा है। और इसके बाद जैसे इसके फॉर्मेशन बन रहे हैं मुझे लगता है कि स्टॉक 200 के करीब भी जा सकता है। तो करंट लेवल से ONGC का भी एक प्रेफरेंस रखें, इसे भी आप रडार पे रखें। करंट लेवल से भी लॉन्ग करें, कोई भी डीप आए तो लॉन्ग करके चले। पोजिशनल व्यू ले, 145 का स्टॉप लॉस रखें, 200-210 के टारगेट हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है।
ऑलराइट, तो ओएनजीसी के ये लेवल्स का ध्यान रखें। एक बार हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स की बात कर लेते हैं। आज सुबह हमने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात भी की थी राजेश, तब बातें की जा रही थी कि अभी जिन लेवल्स पर है उसके ऊपर अराउंड अबाउट 400 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल होगा और उसके बाद एक अलग अनदर लेग अप हमें दिखा सकता है काउंटर। अब कैसे देख रहे हैं आप? एक बार चार्ट चेक करें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के। तो प्रियंका जी बिल्कुल देखिए, स्टॉक में जो स्ट्रेंथ बनी है पिछले 2-3 वीक का अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बना के स्टॉक अप ट्रेंड दिखाते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में 425 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे 375 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना है वीकली सेटअप के हिसाब से। हमें लगता है वो स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अगर वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, वहां पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखे और नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्ट्रेंथ यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और 425 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 375 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी एलआईसी हाउसिंग में। ठीक है, एलआईसी हाउसिंग पे तो बाय करना ही है। लेकिन अभी श्रीकांत जब ओएनजीसी के बारे में बोल रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल ये चल रहा था। श्रीकांत, अगर आपको लग रहा है कि ओएनजीसी इतना कॉन्फिडेंट है, एक बार इसको ट्रेड में कन्वर्ट तो करके दो। फिर आप इसका हमको स्टॉप लॉस बताओ, टारगेट बता दो। अगर हमारा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग बन रहा है ओएनजीसी पे कि हमको वन ऑफ द फाइनेस्ट अब ये फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है, एक बार मेरे को स्टॉप लॉस और एक टारगेट भी दे दो। अगर ऑप्शंस में करना है, हम ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, वी आर ओपन। हम फ्यूचर ऑप्शंस, कैश जैसे बोलोगे वैसे पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू लेना है यहाँ से कम 2 से 3 हफ्ते का अगर व्यू लेना है, क्योंकि तब तक बजट भी आ जाएगा, अगर वो व्यू रख के अगर काम करना है तो हमें लगता है कि 145 का स्टॉप लॉस रखें, 165 के करीब बाय करें और कम से कम 200-210 के टारगेट्स रखें। एंड विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर इसे खरीदना है तो मुझे लगता है कि खरीदने के लिए 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 165-166 के करीब मिल रहा है, इसे खरीद ले। और इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 180 से लेकर 183 के। तो यहाँ पे 5 से 6 रुपए की रिस्क है, लेकिन टारगेट्स कम से कम 10 से 15 रुपए के ऊपर का है। इंटरेस्टिंग, ये हुई ना बात। आप 145 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 210 रुपए का टारगेट हो गया। ये तो हो गया पोजिशनल वालों के लिए जिनको रखना है, कम से कम 15-20 दिन रख सकेंगे सौदे को। थोड़ा लॉट साइज बड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर जिनको हाल फिलहाल में देखना है फटाफट, जिसको कहते हैं ना झटपट ट्रेड, झटपट कमाई वाला, तो उनको 160 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना। 183 रुपए का टारगेट है। अच्छे से लेवल्स को नोट कीजिएगा। 160 लगते स्टॉप लॉस कटवाना पड़ेगा और 183 आते ही आपको पोजीशंस भी वाइंड अप कर लेनी होंगी। तो ये ओएनजीसी का ट्रेड हमने आपके लिए कन्वर्ट कर दिया जहाँ पे कन्विक्शन स्ट्रांग थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जरा कुछ एक और सौदे जहां पर आज मार्केट तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं एक्चुअली राजेश सर, सुबह से ना मैं एचसीएल टेक को देख रहे हैं। एक बार नंबर्स आने के बाद जो झटका लगा ना तो वहां से और ज्यादा गिरा, ना तो पुल बैक आ रहा है। अब जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको कल के मुकाबले रिजल्ट भी आ गया और 6% सस्ता भी मिल रहा है। क्या ले लेना चाहिए एचसीएल टेक को? नंबर्स इतने भी खराब नहीं थे कि जितनी पनिशमेंट मिल गई। तो देखिए डिम्पी जी, ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो स्टॉक का पॉजिटिव है। जरूर रिजल्ट का एक रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला, बट हमें नहीं लगता कि एज सच कोई स्टॉक के सेटअप में अभी कोई एज सच नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। अभी भी स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने हुए, हमें लगता है ये डिप्स इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 1240 ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सपोर्ट एरिया लगता है हमें नियर टर्म चार्ट पे। तो 1240 के आसपास अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो बिल्कुल वहां पे बाय करना चाहिए। 1220 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये डिप में बाय करने के लिए। तो 1240 थोड़ा सा वेट कर ले, 1-1.5% की अगर और कमजोरी इसमें मिलती है तो वहां पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 1220 के स्टॉप लॉस से वापस बाय किया जा सकता है। और अपसाइड में हमें लगता है ओवरऑल आईटी सेक्टर तो एक बुलिश जोन में बना हुआ ही है, तो हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक में वापस अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और फिर स्टॉक में 1290 से लेकर 1330 तक के अपसाइड वापस इसमें आते हुए दिखेगी। तो डिप में बाय करें 1220 के स्टॉप लॉस से। राजेश, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी एक ईवी का प्ले है। वो इस तरह के केमिकल्स कुछ बना रहे हैं जो उस सेक्टर में इनका एप्लीकेशन है और कॉनकॉल ने भी कुछ बात की है। कोरोमंडल आज करीब 3% ऊपर है।
आप इसको चार्ट से देख के बताएंगे क्या लेवल्स दिखते हैं यहाँ से? बिल्कुल अजय जी, लास्ट वीक भी हम आपके साथ जुड़े थे तो वहां पे हमने बाय करने की सलाह दी थी कोरोमंडल पे, जब स्टॉक करीब ट्रेड कर रहा था 765 770 की जोन में। जिस तरीके के ये स्टॉक में रिवर्सल बने हैं, हमें लगता है कि स्टॉक अब यहाँ से 840 850 की तरफ भी मूव होते हुए दिखेगा। अगर मंथली सेटअप की बात करें तो स्टॉक में जो पिछले 4-5 मंथ का एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन 735 730 की जोन से एक अच्छा बेस बना के वहां से रिवर्सल दिया है, और जिस तरीके के रिवर्सल इस पे मंथली और वीकली सेटअप पे बने, हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक में 880 से 900 तक के अपसाइड भी आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में देखने को मिल सकती है। तो 770 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखना होगा। स्टॉक लो बीटा स्टॉक है, स्लो मूवर है, तो हमें लगता है कि थोड़ा इसको टाइम देना होगा, लेकिन जिस तरीके से रिवर्सल बना है हमें लग रहा है 880 तक के अपसाइड भी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अपोलो टायर के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर साहब से पहले दरख्वास्त है कि लास्ट 6 महीने का या लास्ट 1 साल का ग्राफ अपोलो टायर्स का अगर आप निकालें तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक 220, 180, 230 इस रेंज में बहुत लंबे टाइम तक चला है। अपोलो टायर्स की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर उससे लंबा भी चार्ट देख सके। अब जब पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस मूव करने के मूड में लग रहा है लास्ट 1 हफ्ते से, अपोलो टायर्स आज 4-5% ऊपर है। चार्ट्स पे आपको क्या नजर आता है अपोलो टायर्स के, राजेश? बिल्कुल अजय जी, ऑलमोस्ट फैब 2021 से लेके अभी तक का इसका स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूं तो जिस तरीके से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था, 240-45 इसका हायर बैंड था और लोअर साइड पे 200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक का। तो 40-45 रुपए की ही रेंज में पिछले 7-8 महीनों में ये स्टॉक को हमने देखा कि ट्रेड करते हुए रहा है। जिस तरीके से अब ये स्टॉक में वापस एक्शन बना है और अब ये अपर बैंड की तरफ मूव होते हुए दिख रहा है। इवन अगर हम देखें तो ऑटो मोबाइल सेक्टर में भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना है और ऑटो एंसिलरी में भी बना है। तो हमें लगता है कि इस अटेम्प्ट में जरूर अपोलो टायर में ये ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख सकता है, और 245 246 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही ये लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग आने लगेगी तो ये स्टॉक में हमें लगता है जो अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है वो होना चाहिए करीब इसकी 285 से लेकर 290 तक की। तो अपोलो टायर पे बाय करने का व्यू है, थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें और डिप्स में इसको एक्यूमुलेट करें। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हमें लगता है कि इस अटेम्प्ट में जरूर इसमें ब्रेकआउट बनेगा और फिर स्टॉक में 285 290 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। करंट लेवल से 230 के आसपास का हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए। बिल्कुल, ऑलराइट। तो अपोलो टायर पे ये व्यू रहेगा फिलहाल। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बाजार अब आज एक लिमिटेड रेंज में ही कारोबार कर रहा है। यहाँ से निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन बैंक निफ्टी पर एक व्यू जो निकल कर आ रहा है वो थोड़ा सा वीकिश लग रहा है। यहाँ पर राजेश, अगर ऐसे में BTST किसी को ट्रेड करना तो आपकी क्या सलाह रहेगी? तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी अच्छा एक्शन बना हुआ है और हमें लगता है कि काफी स्टॉक्स में जो बाइंग एक्शन बना है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। इंडेक्स में जरूर, बैंक निफ्टी में जरूर एक थोड़ा सा साइडवेज हमें लगता है कि जब तक 3800 का लेवल क्रॉस नहीं होगा थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिलेगा। बट निफ्टी में जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें हमें लगता है कि काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो जो स्टॉक हमारे रडार पे है अभी वो उसमें एक आदित्य बिरला फैशन रिटेल को यहाँ पे देखा जा सकता है। 310 311 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके सेटअप बने स्टॉक में 325 330 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो 304 के स्टॉप लॉस से ABFRL को बाय किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ग्रासिम का, और ग्रासिम का सेटअप भी जिस तरीके से बना हुआ है और इसने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब यहाँ पे क्रॉस किया है। तो हमें लगता है ग्रासिम यहाँ से काफी अच्छा रनअप आगे आने वाले दिनों में दिखा सकता है। 1920 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने और जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुए स्टॉक के, तो ये स्टॉक में 2000 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 1880 के स्टॉप लॉस से ग्रासिम बाय किया जा सकता है। और जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है L&T का। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है L&T को भी यहाँ पे बाय करना चाहिए।
BTST पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 2120 2130 तक की, लेकिन पोजिशनली हम मान के चलते हैं ये स्टॉक में 2200 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हो सकता है ये स्टॉक एक बजट प्ले का स्टॉक भी बनता हुआ दिखे और स्टॉक में 2200 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिले, तो ये स्टॉक भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2030 का। कल रिजल्ट से पहले क्या बाय करेंगे? हम देखते हैं एक साइड मूव देखने को मिलते हैं, स्टॉक एक ही दिन में 8-10% चढ़ भी जाता है और गिर भी जाता है। कैसा मोमेंटम हो सकता है? आप बजाज फाइनेंस को क्या बाय करेंगे BTST के लिए? देखिए लास्ट 2 सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और जिस तरीके से एक्टिविटी बजाज फाइनेंस में बनी है, हमें लगता है कि रिजल्ट में जरूर वॉलेटिलिटी रहती, लेकिन जो सेटअप बने हैं इसके वो ये दिखाते हैं कि स्टॉक में एक पॉसिबली एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। और जिस तरीके के सेटअप है स्टॉक के, हमें लगता है कि अगर स्टॉक में पॉजिटिव बनती है तो स्टॉक 8300 तक की भी अपसाइड यहाँ से बहुत जल्द दिखाने के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 3 महीने का एक करेक्शन के बाद जो एक रिकवरी का ट्रेड बना है इस मंथ में, वो ये दिखाता है कि प्रीवियस स्विंग हाई को भी ये स्टॉक क्रॉस करते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी रिजल्ट के चलते, लेकिन जिस तरीके के सेटअप बने हमें लगता है 7750 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 8200 से 8300 तक की अपसाइड हमें लगता है बिल्कुल इसमें आते हुए दिख सकती है। अगर चाहिए तो इसको ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। इसमें हमें लगता है 8000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 157 रुपए 158 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी बाय किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट फ्यूचर या कैश में पोजीशन नहीं लेना है तो 157 में ऑप्शन बाय करें, 110 का स्टॉप लॉस रखे। और हमें लगता है जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में अपसाइड 8200 तक आ सकती है, तो ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 260 से 280 रुपए तक। ठीक है। खैर मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। मार्केट और इकोनॉमी का बेजोड़ चैनल है ET न्यूज़ स्वदेश। थोड़ी देर में हम आपको रघुराम राजन जी ने क्या बोला, क्योंकि उनसे बातचीत की हमारे एडिटर इन चीफ कुछ डालमिया ने, लेकिन उन सबसे पहले एक मैं आपको एक और चीज और दिखाना चाहूंगा। एक जरा ग्रासिम पे व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ श्रीकांत का। श्रीकांत, अल्ट्राटेक चला, अल्ट्राटेक के चलते चलते ना ग्रासिम भी ऊपर आ गया, एकदम से 1900 के ऊपर आके अब ये ट्रेड कर रहा है। इस पर आपका व्यू पॉइंट, इसको कैरी करके जाना चाहिए क्या? बिल्कुल, तो यहाँ पे भी देखिए काफी अच्छी तेजी बनी है और जैसे कि नेक्स्ट लेवल्स अगर यहाँ से अगर निकालते हैं तो हमें एक्सटेंशन की थियरी यूज करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि 1950 से लेकर 1960 के लेवल से दिखा सकता है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू BTST के बेसिस पे बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि एंटायर स्पेस में तेजी बनी है। और अगर करंट लेवल से मैं लॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा तकरीबन 1890 के करीब का। ठीक है, बिल्कुल। आप तो अब इस वक्त मार्केट्स पर देखकर नजर डालें हम, तो क्लियरली जो ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं उसमें आपको आज ऑटो एंसिलरी ये स्पेस बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जितने भी EV थीम से जुड़े हुए, चाहे OEM मैन्युफैक्चरर हो, टायर हो, ये सारे स्पेस आज, और ऑटो दिमसेल्फ, तो ये सारे के सारे ट्रिगर बहुत अच्छे प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बैंकिंग स्पेस में आपको थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर आपको देखने को मिल रहा है। और डेरिवेटिव स्पेस में आपको कई सारे काउंटर जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, जिनमें बजट का ट्रिगर होगा, जिनमें EV का ट्रिगर है, इनफैक्ट कुछ बाउंस बैक आपको रिजल्ट्स पर, कॉर्पोरेट अर्निंग के बेसिस पर, ये सारा आपको ट्रिगर बड़ी क्लियरली दिख रहा है। होम फाइनेंस काउंटर्स आप देखें, अगर यहाँ पर बहुत वेरी क्लियरली एक कैनफिन होम्स हमने देखा बहुत समय तक बीच में एक थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन में जरूर रहा, लेकिन अब फिर से वो एक अच्छा खासा बाउंस बैक सेशन दिखाई दे रहा है। तो ये सारा एक आज इंटरेस्टिंग सेटअप आज का दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपको जहां शॉर्ट कवरिंग क्लियरली दिख रही है, वहां पर आपको टाटा पावर, कमिंस इंडिया और आदित्य बिरला ऑलरेडी 300 के पार हम चल चुका है। और आई थिंक नवंबर के मंथ में हमने आप एक बार अपने चैनल में मॉर्निंग शो में ये ट्रिगर्स डिस्कस भी किए थे व्यूअर्स के लिए। तो बहुत क्लियरली जो थीम्स जो आइडेंटिफाई की गई हैं बाजार के लिए, वो आपको चलते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप डेरिवेटिव स्पेस में यहाँ देखें तो कम से कम 112 एडवांसेस और उसके आगे 77 डिक्लाइंस, तो यानी आपको एडवांसेस भी दिखेंगे, डिक्लाइंस भी दिखेंगे, लेकिन एक तरफा मूव, आपको शानदार मूव दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। नंबर्स के बेसिस पर ये हफ्ता हैवी वेट्स का है।
लगभग 24% निफ्टी काउंटर्स के रिजल्ट्स इसी वीक में है, तो हैवी लोडेड अर्निंग से लोडेड ये वीक रहेगा और हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बनी हुई रहती है। और अल्ट्राटेक सीमेंट से पहले हमने देखा किस तरह का एक प्रेशर था स्टॉक पे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि सीमेंट आने रिजल्ट्स आने के बाद ना सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट, इनफैक्ट पूरा सीमेंट पैक आपको तेज दिखाई दिया। ओपन अप थीम के काउंटर्स में भी आप देखें तो फिर से आपको कहीं ना कहीं बाउंस बैक दिखता है और इनफैक्ट अब ओमिक्रॉन के कोई फियर्स दिख नहीं रहे जिसके चलते आप बाजार पर कोई रीजन हो यहाँ पर शॉर्ट करने का या फिर यहाँ पर किसी तरह का प्रेशर या डेंट क्रिएट करने का। तो इंटरेस्टिंग सेटअप आज दिखाई दे रहा है। फर्टिलाइजर स्पेस में हम क्लियरली डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल में अभी हम फिर से देख रहे हैं नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ऐड होते हुए। श्रीकांत, ये वाला ट्रेंड पसंद आएगा आपको बीटीएसटी के लिए फर्टिलाइजर स्पेस? बिल्कुल, तो जहां पे भी रैली बन रही है वहां उन सभी स्टॉक्स के ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है। और कोरोमंडल फर्टिलाइजर अगर आप देखें तो वैसे काफी लो बीटा स्टॉक है एक्सक्यूज मी, तो ये काफी लो बीटा स्टॉक है, लेकिन अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है कि जीएनएफसी पे फोकस करें, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर के ऊपर। यहाँ पे जो इसके पैटर्न बने हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइस को छू सकता है, जो है तकरीबन 490 से लेकर 500 के करीब के, और इन्हें अगर ब्रेक करता है तो बड़ी तेजी और बन सकती है। साथ ही साथ कल के दिन में हमने एक पॉज एक्टिविटी देखी थी, तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस इज वेरी नियर बाय। 490 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आज आप कोरोमंडल आप देख रहे हैं पूरे फर्टिलाइजर पैक की बसिंग है। इनफैक्ट रिजल्ट्स का आप ट्रिगर देखें कितना अच्छा। मेट्रो ब्रांड हाल ही में लिस्ट हुआ और आप देख रहे हैं कि काउंटर में रिजल्ट्स के बाद 20% का अपर सर्किट लगा हुआ अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद। एचसीएल टेक जहाँ की इतना बड़ा डेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है रिजल्ट्स पोस्ट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स इतने भी खराब नहीं आए, लेकिन जिस तरह से बाजार हैज अ डिफरेंट एल्गोरिथम टू वर्क ऑन इट्स, अपनी स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं हर ट्रेडर की और हर एक इन्वेस्टर की। इस वक्त बाजार क्लोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अराउंड 30 सेकंड्स जहां से हम देख रहे हैं कि 18,300 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता हुआ निफ्टी आज आपको दिखाई दे रहा है। तो लगभग जब हम खुले एक माइनर से डेंट के साथ जरूर खुले थे, शुरुआत में हमें गैप डाउन देखा, उसके बाद उस गैप को फिल किया निफ्टी ने और अब 18,300 के ऊपर आप बहुत ही कंफर्टेबली क्लोज होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उसमें जिस तरह की रिकवरी आपको स्टील पैक से मिली, स्टार्टिंग से ही आपको आज क्लियरली लीडरशिप जो है वो ऑटो पैक से देखने को मिली है। विनर्स जो है, जो लीडरशिप वो पूरी की पूरी आपको हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, टाटा मोटर्स इन स्टॉक से आई, और ना सिर्फ ऑटो पैक, आपको ऑटो पैक के साथ साथ दूसरे ऑटो एंसिलरी काउंटर्स हो, ओईएम मैन्युफैक्चरर हो, चार्जिंग स्टेशन, लिथियम बैटरी, तमाम जो स्पेस में आप जितने भी ट्रिगर्स सोच सकते हैं वहां पर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसी तरह का बाद में हमने एक सेशन देखा, क्योंकि अब रिजल्ट्स के बेसिस पर सेक्टर्स की मूवमेंट देखने को मिलती है, तो पूरा सीमेंट पैक अब बजिंग आपको दिखाई दे रहा है। आप सारा का सारा सीमेंट पैक देख रहे हैं बजिंग है, और साथ ही मेटल पैक में भी एक अच्छी रिकवरी सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिली। तो आज का ट्रेड सेटअप क्वाइट इंटरेस्टिंग। बजट से पहले हमने कई सारे स्पेस और सेक्टर्स भी देखे जो बजिंग है। आज फिलहाल को शो को यहीं समेटते हैं, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते अपने सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, श्रीकांत, आपने अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की, टेक्निकल नजरिया शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मुझे, डिम्पी और अजय को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।